اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. کلاس 11 سبجیکٹ فزکس جو ٹاپک ہے ہم ڈائمینشنز پڑھتے ہیں. اب اسی ریلیٹڈ ٹاپک ہے ڈائمینشنل انالیسس. ٹھیک ہے نا. آپ نے دیکھا جب ہم ڈائمینشنز لیتے ہیں، جو یہ فزیکل کوانٹیٹیز ہیں یہ ایکویشن میں ہم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یعنی اگر ہم مان لیجیے ویلاسٹی کے ڈائمینشنز چاہیے، ہم اس سائڈ ویلاسٹی لیتے ہیں، لیفٹ سائڈ میں رائٹ سائڈ اس کے ڈائمینشنز لیتے ہیں. سو اس کو ہم ایکویشن میں رکھتے ہیں. اب جو یہ ڈائمینشنل انالیسس جو ہے، یہ ڈائمینشنل ایسی ایک ٹیکنیک ہے جس سے ہم اس کے بہت ساری اپلیکیشنز تھیوریز بنانے کے لیے یا آبزرویشن فزکس کو تھیوریٹیکل فارمولیشن بنانے کے لیے یا آبزرویشن کرنے کے لیے ہم لے رہے ہیں. اس کے امپورٹنٹ یوزز کیا ہیں؟ نمبر فرسٹ پارٹ، یعنی جو یہ ڈائمینشنل انالیسس مینس it finds wide applications in the formulation of theories and observations in physics. ٹھیک ہے نا. یہ ایک ٹیکنیک ہے جس سے ہم یہ چیزیں ڈٹرمائن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب اس کے جو امپورٹنٹ یوزز ہیں، کس کے؟ ڈائمینشنل انالیسس کے جو امپورٹنٹ یوز ہے، فرسٹ یوز اس کا کیا ہے؟ ہم جو ہمارے پاس فزکس میں ایکویشن ہوتی ہے، اس میں جو کریکٹنیس اور اس میں جو ایکوریسی ہوتی ہے، اس گیون ایکویشن کی اس فزکس میں اس کی جو کریکٹنیس اور ایکوریسی، اس سے ہم چیک کرتے ہیں. ایسے لکھتے ہیں: وی کین چیک دی کریکٹنیس and accuracy of a given equation in physics. ٹھیک ہے نا. اس سے ہم چیک کر رہے ہیں اس کی کریکٹنیس اینڈ ایکوریسی. ہمارے پاس ایکویشن ہوتی ہے، اس میں جو ڈائمینشنز ہوتے ہیں بوتھ سائڈز، کیونکہ جب ہم بات کرتے ہیں ایکویشن کی، ایکویشن میں دو سائڈز ہوتے ہیں. کتنے سائڈز ہوتے ہیں؟ لیفٹ سائڈ ہے، رائٹ سائڈ. ایکویشن کے جو اگر ڈائمینشنز ایک جیسے آتے ہیں تب کہیں گے ہم یہ جو ایکویشن ہے یہ کریکٹ ہے. اگر برابر نہیں آئیں گے ڈائمینشنز، ان ٹرمز آف ڈائمینشنز بھی ہم کہیں گے کیا ایکویشن صحیح ہے یا غلط ہے، کریکٹ ہے یا انکریکٹ ہے. یہ ڈائمینشنز کے اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ڈائمینشن کے اعتبار بھی ہم کہہ سکتے ہیں کیا یہ ایکویشن صحیح ہے یا غلط ہے. تب جب دونوں سائڈز میں جو ڈائمینشنز سیم آ جائیں گے تب کریکٹ ایکویشن ہے. ایسے فار سیم values of dimensions on both sides of an equation, the equation is correct. جب if values
both sides are not same, if values on both sides are not same, the equation is incorrect. तब उस इक्वेशन हमको क्या कहते हैं, ये इनकरेक्ट है. क्या है? इनकरेक्ट. मान लीजिए हमारे पास वेलोसिटी के लेते हैं, सपोज ये वेलोसिटी है ना, इसके डायमेंशंस क्या है, m0 l1 t -1, ठीक है ना. अब इस वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, है ना. अब देखते हैं ये m0 l1 t -1 कहलाता है. इसके डायमेंशंस है, ज़रा इसके डायमेंशंस देखिए. डिस्टेंस मीन्स लेंथ, इसमें क्या है, m0 है, l1 है, t0 है, डिवाइड बाय यहाँ m0 है, l0 है, t1 है, इज इक्वल टू m0 l1 t -1. यहाँ m0 और m0 यहाँ ऐसे लिखते हैं हम m0 l1 जब ऊपर लेते हैं हम m0 यानी दिस मीन्स 1 है ना. m0 l1 t यहाँ 0 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है ना. एनीथिंग रेज पावर 0 इज 1, 1 into 1 is 1 into t1, दैट मीन्स t1. जब t1 को ऊपर ले रहे हैं, नाउ दिस विल बिकम t रेज पावर -1. m0 l1 t बेसिस सेम पावर शुड बी एडेड, 0 - 1 दैट इज -1 इज इक्वल टू m0 l1 t -1. जब हमने वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन के भी हमने डायमेंशंस निकाले और इसके डायरेक्ट डायमेंशंस लिखें. जब हम देखते हैं ना m0 l1 l1 है ना, t1 t1, अब कह सकते हैं हम कि ये इक्वेशन करेक्ट है. क्यों करेक्ट है? ऑन टर्म्स ऑफ डायमेंशनल फार्मूलाज हम कह सकते हैं इक्वेशन सही है, ये करेक्ट है. अगर ये आपस में बराबर नहीं होते तब हम कहेंगे ये इनकरेक्ट है. इस यानी हम इक्वेशन को डायमेंशनल एनालिसिस पे भी कहेंगे क्या ये सही है या क्या ये गलत है. दिस इज फर्स्ट पॉइंट या फर्स्ट पॉइंट. यहाँ अब सेकंड पॉइंट, बी पॉइंट, हम जो ये वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज एसोसिएट करते हैं एक्सपेरिमेंट के साथ. जब हम किसी चीज़ को एक्सपेरिमेंट में ले रहे हैं, उसमें बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज मेजर करना होता है, मास करना होता है, सपोज लेंथ होता है, फोर्स निकालना होता है, ठीक है ना. ये एसोसिएट एक ही फिजिकल क्वांटिटीज के साथ ये चीज़ें फिजिकल क्वांटिटीज के साथ जब ये चीज़ें एसोसिएट करते हैं, जब हम इन चीज़ों के बीच में एक रिलेशन निकाल रहे हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट, इसमें जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है वो ऐसे रिलेशन में आ जाते हैं कि वो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस आपस में क्या करते हैं, वो भी करते हैं. ऐसे वी कैन डिराइव, हम रिलेशन को निकाल रहे हैं, डिराइव करते हैं. वी कैन डिराइव रिलेशन बिटवीन वेरियस फिजिकल quantities, वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है ना. एसोसिएटेड with an experiment, the physical quantities ऐसे, the physical quantities will enter into such a relation
into such relation as to obey the principle of homogeneity, principle of homogeneity of dimensions. मिसाल के तौर अगर हमारे पास m प्लस है ना, m प्लस इज फोर्स इंटू टाइम, लेकिन फोर्स किसके बराबर है, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू टाइम। अब इसमें कितने, ये एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई, ये दूसरी फिजिकल क्वांटिटी, तीसरी फिजिकल क्वांटिटी, इसमें है ना वी कैन डिराइव रिलेशन, एक रिलेशन है m प्लस के बीच में, ये रिलेशन है ना, एक रिलेशन हमने यहाँ खड़ा की ना, लेकिन इनके बीच में वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज है। कौन कौन फिजिकल क्वांटिटी, मास, एक्सेलरेशन एंड टाइम। अब तीन फिजिकल क्वांटिटी इनके बीच में आ गई, इस रिलेशन में आ गए, एसोसिएट्स है ना। ये एक्सपेरिमेंट हमने मान ली, एक बॉल ले रहे हैं, एक हम मार्बल ले रहे हैं, इसको एक रॉड में फेंकते हैं, फोर्स देते हैं, एक वो इससे बाहर आ जाता है, इस रॉड के ज़रिए बाहर आ जाता है, यानी हमने इस पे फोर्स दिया और कितना टाइम लिया, ये एक एक्सपेरिमेंट किया, जो वहाँ वैल्यू आ गया उसने हमें उस चीज़ का एम्पल्स दिया, इस एक्सपेरिमेंट का एम्पल्स दिया है ना। अब इसमें फिजिकल क्वांटिटी क्या कर रहे हैं, ये होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओबे करते हैं। क्या करते हैं, जब इस चीज़ के हम डायमेंशंस निकालते और इनके बीच में डायमेंशंस निकालते, वो आपस में बराबर होंगे, ठीक है ना। यानी इसमें ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस यहाँ ये ओबे करता है। नंबर थर्ड पॉइंट, सी पॉइंट, और थर्ड पॉइंट का है, हम जो ये यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटीज़ के ये फ्रॉम वन सिस्टम अनदर सिस्टम को हम क्या कन्वर्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास यही समझो फिजिकल, वी कैन कन वैल्यूज ऑफ यूनिट्स फिजिकल, पहले हम फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं ना, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी मान लीजिए मास है, लेंथ है, ठीक है ना। वी कैन कन्वर्ट द वैल्यूज ऑफ के यूनिट्स फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम अनदर टू अनदर। हमारे पास मास है, इसके जो CGS सिस्टम इसके हैं ग्राम्स है ना, लेंथ के CGS सिस्टम क्या है, सेंटीमीटर। इन ग्राम्स को हम किलोग्राम बनाते हैं, ग्राम्स को हम क्या करते हैं, किलोग्राम बनाते हैं, सेंटीमीटर को हम क्या करते हैं, मीटर्स बनाते हैं। यानी वी कैन कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ यूनिट्स ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़, और फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो यूनिट्स हैं इनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस डायमेंशन के एनालिसिस की मदद से, इसके हेल्प से, ठीक है ना। अब इसके बाद वाला जो अभी हमने बात की वो भी प्रिंसिपल क्या करता है, प्रिंसिपल ऑफ, हमने कहा इसमें ये जब रिलेशंस होते हैं, यानी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की बात की है ना, होमोजेनिटी की बात की है ऑफ डायमेंशंस। अब इसकी हम थोड़ी सी वजाहत ले रहे हैं, ये कि इसमें क्या आता है, ये किस चीज़ को हम बोलते हैं। जो ये इट स्टेट्स दैट ए गिवन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, मान लीजिए हमारे पास एक गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन, सपोज इक्वेशन के दो साइड्स होते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू सी, ये इस साइड में ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको दूसरी के साथ ऐड किया, दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, जो उन्होंने रिजल्ट दिया वो समझो थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है। इनका ऐड हमने राइट साइड में रिजल्टेंट रखा है राइट साइड में, अब ये इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। इसको हम कैसे इज ए करेक्ट इक्वेशन, कैसे हम इसको करेक्ट इक्वेशन कहेंगे, इज ए करेक्ट इक्वेशन ऑफ फिजिक्स। कैसे कहेंगे, जब इनके बीच में जो डायमेंशंस हैं वो बराबर आ जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि ये करेक्ट इक्वेशन है। इफ द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म, मान लीजिए इसका जो डायमेंशन है, मीन्स डायमेंशंस
ऑफ टर्म ए इज इक्वल टू, अब मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, डायमेंशंस ऑफ टर्म या टर्म ए इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टर्म बी इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ टर्म डायमेंशंस ऑफ टर्म सी। तब कहेंगे ये एक लेफ्ट साइड में जो डायमेंशंस आ जाएंगे, लेफ्ट साइड डायमेंशंस इज इक्वल टू राइट साइड डायमेंशंस, तब कह सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है। यानी इफ द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन LHS इज सेम एज द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन द RHS, द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विद अदर क्वांटिटी डज नॉट चेंज। इनके बीच में जो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन of physical quantities with other quantities does not change। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है, जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन इनके बीच में करेंगे उससे इनके डायमेंशंस चेंज नहीं होते। डज नॉट चेंज द डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी obtained as a result of multiplication and division of two physical quantities। मान लीजिए हमारे पास, अभी मैंने बताया वेलोसिटी की बात की है ना, यानी डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। ये एक फिजिकल क्वांटिटी, दूसरी फिजिकल, इनके बीच में क्या है, डिवाइड है। यहाँ फोर्स की बात की हमने, मास इंटू एक्सलेरेशन, ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, ये भी क्या फिजिकल, इनके बीच में इंटू है। यहाँ डिवीजन आता है ऑपरेशन, यहाँ इंटू आता है ऑपरेशन। जब हम डायमेंशंस फिजिकल क्वांटिटीज़ के हम हासिल करते हैं एज रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यह मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट दे के हमने जो डायमेंशंस लेके यहाँ डिवीजन दिया, उस डिवीजन करने से दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में जब डिवीजन किया, मल्टीप्लिकेशन किया, एज ए रिजल्ट जो डायमेंशंस आ गए वो सेम नहीं होते हैं, और नॉट सेम एज द डायमेंशन ऑफ द कंपाउंड्स। ये कंपाउंड्स मतलब क्या है, कंपाउंड्स का मतलब है हमारे पास यही है, वेलोसिटी के जो कंपाउंड, इसमें डिस्टेंस और टाइम है, फोर्स के मास एंड एक्सीलरेशन है। फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या है, इफ A प्लस B इज इक्वल टू C इज ए करेक्ट इक्वेशन, हम इसको करेक्ट इक्वेशन कह सकते हैं। इट यानी देन इट विल हैव, कब, यानी डायमेंशंस ऑफ A इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ B, दूसरा मैंने पहले बताया डायमेंशंस ऑफ C, ये आपस में बराबर हैं, तब करेक्ट इक्वेशन कहलाता है। ठीक है ना। इफ AB प्लस C इज इक्वल टू D इज नॉट नहीं, इज ए करेक्ट इक्वेशन, कहेंगे ये करेक्ट इक्वेशन है। पहले यहाँ मैंने देखा ना, A प्लस बी इज इक्वल टू C, अब दिया AB प्लस C, यहाँ इनके बीच में मल्टीपल किया, फिर एडिशन किया, इज इक्वल टू D। अगर ये करेक्ट इक्वेशन है देन इट विल हैव, इसके क्या होंगे, यानी डायमेंशंस ऑफ AB। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन इनके बीच में, इन दोनों के अगर डायमेंशंस किसके बराबर होंगे, डायमेंशंस ऑफ C
इज इक्वल डायमेंशंस ऑफ डी, तब भी ये इसको हम करेक्ट इक्वेशन कह सकते हैं। यानी डायमेंशन के एतबार में इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड में जितने भी टर्म्स हैं, यानी इसमें 3 टर्म्स हैं, इनके बीच में एक ही हम डायमेंशंस लेते हैं प्लस इसके डायमेंशंस बराबर होंगे इसके डायमेंशंस, तब ये करेक्ट इक्वेशन कहलाता है। अगर डायमेंशन इनके सही नहीं होंगे तब इनको हम ये करेक्ट इक्वेशन नहीं कहते हैं। कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह हम लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। आज था डायमेंशनल एनालिसिस, या हम कहेंगे दूसरा था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। होमोजेनिटी मीन्स होमोजेनियस, यकसानियत, एक जैसे। लेफ्ट साइड और राइट साइड के, लेफ्ट साइड में जितने भी टर्म्स हैं, राइट साइड में जितने भी टर्म्स हैं, इनके बीच में जब डायमेंशन एक जैसे होते हैं तब हम कह सकते हैं ये इक्वेशन करेक्ट कहलाता है। थैंक यू वेरी मच।